Hello and welcome to another Explainer Talk. This is Faisal Gurmani, and in this video we will be discussing about the rise and downfall of Saddam Hussein. मॉडर्न हिस्ट्री में अगर किसी डिक्टेटर का नाम आएगा तो सदाम हुसैन का नाम सर फहरिस्त होगा। सदाम हुसैन का नाम दुनिया के जालिम और जाबिर तरीन डिक्टेटर्स में शामिल किया जाता है और वेस्टर्न वर्ल्ड में उसे बुचर ऑफ बगदाद भी कहा जाता है। इन दिस वीडियो we will try to answer a few most explored questions about Saddam. What was happening in the Middle East when Saddam was born? How was his childhood and how it shapes his political career? How he comes into the mainstream politics, how he chose to be the most powerful man of Iraq and got his say in international politics. उसने इराक को तरक्की की राह पर कैसे गामजन किया? क्या सदाम वाकई ही इतना जालिम था कि जितना उसको मगरब वर्ल्ड ने पोर्ट्रे किया, या सदाम मासूम? Downfall of Saddam Hussein. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. These are Arabs who are going to welcome us as liberators. Saddam Hussein was a bad guy, right? He was a bad guy, really bad guy. Iraqi leader Saddam Hussein and Al-Qaeda's Osama bin Laden were both Arab men who were once allies of the United States. Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction. Saddam Hussein and his regime will stop at nothing until something stops him. Over 4,000 American soldiers were killed, and it took the US more than 8 years to withdraw from Iraq without much to show for it, other than, as we've seen, the strengthening of Iran and the spread of ISIS. Since the 16th century, Middle East में Muslim empires were ruling from Persia to Turkish empires that extended from modern-day Turkey, Arabian Peninsula to Iran. Ottoman empires ने First World War में Central Powers का साथ दिया और Central Powers lost this war. The Ottoman Empire was divided among British and French. Main problem ये था कि this division was based on lines on the maps. इन इलाकों को just lines draw करके divide कर किया गया। थोड़ी सी भी अटेंशन ये नहीं दी गई कि यहाँ की हिस्ट्री, डिफरेंट कल्चर्स, ट्राइब्स, रिलीजन्स, एथनिक आइडेंटिटीज़ के लोग रहते हैं। 1921 में रेजिस्टेंस से बचने के लिए ब्रिटिश इराक को आज़ादी देते हैं और किंग फैसल द फर्स्ट को इसका रूलर बना दिया जाता है, जबकि ब्रिटेन ने इराक में बहुत सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखा। इराक में डिस्कवर्ड मैसिव ऑयल फील्ड्स भी ब्रिटिश के कंट्रोल में थे। The year was 1937. तिक्रित के गांव में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम सदाम हुसैन रखा जाता है। वालिद छोटी सी उम्र में ही छोड़ जाते हैं और उसकी माँ एक दूसरी शादी कर लेती है। सौतेला वालिद बहुत ही मारता है, शायद जिसकी वजह से he was brought to Baghdad by his uncle Khairullah, who had huge influence over the life of Saddam. सदाम के राइज को समझने के लिए ज़रूरी है कि बाथ पार्टी का बनना और उसकी पॉलिटिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होगा। बाथ पार्टी असल में पूरे अरेबियन पेनिनसुला को यूनाइट और इंपीरियलिज्म के खिलाफ एक मूवमेंट थी, जिसका आगाज़ 1947 में शाम से होता है। 1951 में इसकी एक ब्रांच इराक में खोली जाती है। सदाम के अंकल खैरुल्ला भी इस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। सदाम हुसैन ने 20 साल की उम्र में 1957 में बाथ पार्टी ज्वाइन की और उसके बगदाद में कोई 101 मेंबर होंगे। किंग फैसल सेकंड वाज द मोनार्क ऑफ इराक। हिज परफॉर्मेंस वाजंट सैटिस्फैक्टरी फॉर बाथिस्ट और उनके खिलाफ लोगों ने बाथ पार्टी ज्वाइन करना शुरू कर दी और बाथ पार्टी के लोग वर इंस्पायर्ड एंड वर कॉन्फिडेंट टू ओवरथ्रो फैसल द सेकंड। इराकी रेवोल्यूशन ऑफ 1958 52 के इजिप्शियन रेवोल्यूशन से सिमिलर था। ये कू लेड किया अब्दुल सलाम आरिफ और अब्दुल करीम कासिम ने। किंग फैसल और उसके फैमिली मेंबर्स को मार दिया गया। New government was formed. Qasim was unwilling to cooperate with Ba'athist parties in Arab and refused to join United Arab Republic, an instrument of Pan-Arabism established in Egypt. Baathists were furious and
anguished at the policies. There was an assassination attempt on Qasim, और Saddam was one of those given responsibility to assassinate Qasim. Qasim fortunately उस assassination attempt से बच गया. Saddam sneaked out करके शाम चला गया, बाथिस पार्टी वहाँ की ज्वाइन की. Later he went to Egypt. 1963 में शाम में भी कू होता है और बाथिस पार्टी रूल में आती है और 8 साल बाद हाफिज अल-अस्साद रूल करना शुरू कर देते हैं, जिनके बेटे बशार अल-असद आज भी रूल में हैं. कुछ ही हफ्ते बाद इराक में रमदान रेवोल्यूशन आता है, जिसमें कासिम की गवर्नमेंट गिरा के बाथिस पार्टी के और मेंबर पावर सीज कर लेते हैं. मगर 8 महीने बाद 1958 कू के एक मेंबर अब्दुस्सलाम आरिफ, क्लोज अलाई ऑफ कासिम, सीज द पावर और बाथिस पार्टी का सफाया कर दिया. एट द टाइम सद्दाम इराक में ही था और उसने उधर ही रहने का फैसला किया, and in 1964 was arrested for implications to kill Arif. 2 साल जेल में रहा मगर 1966 में जेल से भाग गया. Saddam's ranks rose abruptly in Iraqi Ba'athist Party, appointed as the regional commander. जुलाई रेवोल्यूशन में बाथिस्ट इराक का फुल कंट्रोल ले लेती है और 6 डेज इजराइल इजिप्ट वॉर की वजह से मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है. इराक, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया ने इजिप्ट का साथ दिया. बाथिस्ट चाहते थे कि यूनाइटेड स्टेट के ब्लॉक से निकला जाए किसी तरीके से और उसके लिए चेंज ऑफ द गवर्नमेंट वाज रिक्वायर्ड. एलिमेंट्स विद इन द बाथिस्ट मूवमेंट और मिलिट्री ने एक कू किया और उससे बगदाद में न्यू गवर्नमेंट बनी और अहमद हसन अल-बक्कार बिकेम प्रेसिडेंट. अहमद हसन अल-बक्कार सद्दाम हुसैन के कज़न थे. सद्दाम जल्द ही वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं और अपनी पोजीशन मजबूत करते हैं. सद्दाम हुसैन स्टार्टेड नेशनलाइजिंग इराक्स ऑयल कंपनीज. 1973 में यौम किपुर जंग हुई among Israel and Arab nations, where Western powers supported Israel. The Arab nations limited the supply of oil, which led to energy crisis. उस क्राइसिस से सबसे ज़्यादा इराक ने फ़ायदा लिया क्योंकि ऑयल की प्राइसेस 300% तक बढ़ चुकी थी और इराक की जो ऑयल कंपनीज थी, they were nationalized. Money started flowing and streaming in Iraqi economy. Saddam Hussein rose as a great administrator and reformist, जिसके अंडर इराक ने बहुत सारी चेंजेस देखी. उसने एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्टमेंट की और इराक बहुत जल्दी से तरक्की करने लगा. 1975 में एक 15 साला इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक पैक्ट साइन किया गया, जिसकी रिटेलिएशन में यूएस ने इराकी कुर्द्स को एड देना शुरू कर दी. इन 1979 सद्दाम को इराकी आर्मी का जनरल बना दिया गया और हसन अल-बकर को खौफ था कि सद्दाम किसी भी वक्त उसकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके अपनी गवर्नमेंट बना लेगा और इससे बचने के लिए उसने सीरिया में मौजूद बाथ पार्टी के साथ एक एग्रीमेंट किया कि दोनों कंट्रीज़ की गवर्नमेंट एज अ पॉलिटिकल यूनिट एक्ट करेंगी और अल-बकर लाइफ टाइम रूलर होंगे. उसके बाद हाफिज अल-अस्साद सक्सेसर होंगे. इस पे सद्दाम ने सीनियर बाथिस्ट ऑफिशियल्स और मिलिट्री के साथ मिलकर गवर्नमेंट ओवरथ्रो की और खुद प्रेसिडेंट बन गया. दैट प्रेसिडेंट वुड रिमेन एज द प्रेसिडेंट फॉर नेक्स्ट 24 ईयर. सबसे पहला काम अपना रास्ता साफ किया कि अगर उसके खिलाफ कोई सर ना उठा सके. इसके लिए 21 बंदों को हैंग कर दिया गया और इस तरह से पूरे इराक में सद्दाम के नाम से लोग डरने लगे. किसी पे भी सद्दाम की सीक्रेट एजेंसी को शक होता कि वो रिजीम के ख़िलाफ़ हैं, उसे फ़ौरन मार दिया जाता. इस तरह से सद्दाम ने लाखों लोगों, कुर्द्स, शिया और जो भी डिसिडेंट्स थे उनको मरवा दिया. 2 दहाइयों तक उसका यही दस्तूर रहा कि रूल विद द टेरर. सद्दाम वॉज थ्रेटन्ड बाय द ईरानी रिजीम एंड अटैक्ड इराक. This war lasted for 8 years till 1988 and had negative impacts on Iraqi economy and standing in the world. This ended in a stalemate. Iraq borrowed billions from Kuwait. Saddam knew he won't be able to pay back to Kuwait. Instead, attacked that small nation without any standing army and took control of its oil fields within a day. Saddam गलत था कि Western powers इसको कुछ भी नहीं कहेंगी. But he was wrong and उन्होंने sanctions लगा दी. Western allies started preparing for
counter offensive और started aerial bombings, फिर ground invasion. सदाम ने ऑर्डर दिया कि कुवैत के सारे ऑयल फील्ड्स को जला दिया जाए और इराकी कुवैत से निकल गए. बट सदाम ने अपने रिजीम को मजबूत करने के लिए इस्लामी टच भी देना शुरू कर दिया. वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट सदाम आर दैट ही रोट नॉवेल्स एंड पोएम्स एंड पब्लिश्ड देम इन इराक. ऑल्दो सदाम ने 1991 में न्यूक्लियर वेपन्स और वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन को डिस्पोज कर दिया था, मगर वेस्टर्नर्स का ख्याल था कि सदाम बायोलॉजिकल वेपन्स और केमिकल वेपन्स को डेवलप कर रहा है. यूएन की इंस्पेक्शंस के मुताबिक सदाम ने वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं बनाए, मगर कभी कभी सदाम इनकोऑपरेटिव भी हो जाता था विद द इंस्पेक्टर्स. ऑन 9/11 इन द यूएस ट्विन टावर्स पर अटैक हुआ. अलकायदा लेड बाय उसामा बिन लादेन पर इल्ज़ाम लगता है, जिसके बाद यूएस एंड इट्स allies invade Afghanistan for war on terror. US and its allies shift their attention towards Iraq nuclear weapons, क्योंकि उनका शक था कि इराक जो है न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है, हालांकि उनके पास कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं था. बट USA and Britain went ahead with the invasion and were in control of Iraq within weeks. Spring 2007, Saddam fled and went into hiding. His sons killed. Saddam was in Tikrit for hiding in 1.5 years and found in a ditch hiding. Saddam was captured and then hanged to death. Since then, Iraq is still an unstable country with different groups struggling to seize power. So that's all. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो do like it and share it with your friends. बहुत शुक्रिया.